Hello, everyone, and welcome to Career Launcher. So, in today's class, we will be discussing about all important topics. You all were demanding this session where you were asking, sir, जितने भी important topics हैं, जो events हुए हैं, nationally, international events, उसको आप बता दीजिए एक जगह एक class में, so that it would be easy for us to understand. So, am I audible and visible? If everything is fine, if my voice is reaching, please write yes in the comments. Am I audible, guys? Okay, so let us begin. तो सबसे पहले तो we are already doing a revision series. I hope you are aware. So go to our channel, subscribe to the channel, playlist पे जाओ, and we are doing this revision series. ठीक है, ये तो आपको देखना ही देखना है. Do not skip it. We have done I think around 15-16 parts कर चुका हूँ. So please go and watch this. एक लास्ट लैब सीरीज चल रहा है. इसमें आज एक क्लास होना है. Today at 8 PM we'll be having a session, a sort of a static GVK session. ठीक है, so ये थोड़ा सा लंबा होगा. जनरली 30-40 मिनट्स का होता है, बट मे बी इट मे गो अराउंड 15 मिनट्स एन आवर. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. नाउ लेट अस बिगिन. तो पहले तो आपको ये देखना है. आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड स्किप दिस वन. ये स्किप नहीं करना है, बिकॉज यस वी हैव डन क्लासेस एंड आई बिलीव दैट यू विल, इफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर, यू शुड बी आंसरिंग इट, एंड फ्रॉम द पेड सेशन आल्सो. Okay, so let us begin with January 2024. तो January 2024 में important events क्या हुआ? ठीक है, so let us begin. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनवरी में, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट जनवरी, तो जनवरी में जैसे 15 जनवरी को आर्मी डे होता है, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है. So in this class I will not be teaching, just I will be telling you कि you have to read these things. अगर आपने कवर किया है, if you have covered it, it's fine. Otherwise you should cover these things. ठीक है. So Army Day, Youth Day, then we have 25th January as National Voters Day. National Voters Day, 26th January, everyone knows. Okay. So the important days and themes I have already covered in this class. So I believe that you must have watched it. अगर आपने नहीं देखा है, so please go search this on YouTube and watch it and make notes. इसमें मैंने themes भी बताया है, because in CLAT 2021 they had asked both days and themes, दोनों पूछा था. ठीक है. How to memorize these dates? प्लीज वॉच इट अगेन एंड अगेन. मैं बताता हूँ, इसका करना यह है कि इस वीडियो को बार बार देखो, 2x स्पीड पर 2-3-4 बार देखो तो दिमाग में चला जाएगा. ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट. दैट्स द ओनली वे. ओके, ठीक है. नाउ उसके बाद जनवरी में जो होता है, व्हाट हैपेंस इज एक्चुअली 26 जनवरी को, जस्ट अराउंड 26 जनवरी, दिस इज वेरी मच इन द न्यूज. पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस्ड एंड भारत रत्न इज अनाउंस्ड. सो दिस ईयर एक्चुअली भारत रत्न 5 people have got, so I believe that you should be knowing it. तो भारत रत्न किसको मिला? 5 people को. ये पूछा जाएगा फर्स्ट विनर कौन थे. The 3 winners were the first 3 winners, है ना, and which year it was established and all. तो ये सब पूछा जा सकता है. So please go and watch this video. I believe that you must have watched it. If not, then please go and watch it. So it's not very difficult. Just search this on YouTube, भारत रत्न करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस. You will get this video. ठीक है, ये जरूर जाके देखिएगा. हाँ, जो 5 पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, जैसे मिस्टर एम एस स्वामीनाथन. ठीक है, so he is father of green revolution. ठीक है, so there are 4 other personalities, 2 ex prime minister, 1 ex deputy prime minister, 1 ex chief minister of Bihar. ठीक है, so ये सबको पता होना चाहिए. So I believe that you must have studied these things. Now और क्या क्या पता होना चाहिए? 26 जनवरी को इस साल रिपब्लिक डे गेस्ट ही पूछते हैं एग्जाम में, मैंने देखा है. So currently I am not telling you the answers because I believe that you must have studied it. अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसको जाके पढ़िएगा. ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू द आंसर. रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट कौन थे इस साल? हु वाज द चीफ गेस्ट दिस ईयर? यू शुड नो. इसरो का मिशन था आदित्य L1 एंड एक्सपो सैट. खास की वाला इंपॉर्टेंट है. L1 इज एक्चुअली फॉर, व्हाट इज L1? लाग्रांजे पॉइंट क्या होता है? दिस मिशन इज फॉर व्हाट पर्पस? सेंट, लॉन्च फ्रॉम विच स्पेस पैड, स्पेस सेंटर, कहां से लॉन्च हुआ? ठीक है. देन वी आर टॉकिंग अबाउट इसरो. इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? चेयरपर्सन कौन है? दीज थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट. Then when we are talking about ISRO, we should be talking about DRDO. DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेयरपर्सन क्या है? कहाँ है? ठीक है. फिर DRDO का एक ITR, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदी पोरो दिशा में. So these are the things you should be knowing it. So I'm just giving you information that आपको ये पढ़ना है. ठीक है. Then of course Hasdeo Forest in Chhattisgarh was in the news because someone has got a global environment prize also. तो ये भी पता होना चाहिए. राम मंदिर inauguration was there on 22nd January. अब इनसे रिलेटेड क्या पता होना चाहिए? सो यू शुड बी नोइंग अबाउट दीस थिंग्स की राम टेम्पल जजमेंट का नाम क्या है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड 2019?
ठीक है, उस नाम बताना जजमेंट का। ओके, दिस यू शुड नो। देन दे विल बी आस्किंग अबाउट कि राम टेम्पल जो है वो कौन से स्टाइल टेम्पल से बना है, लाइक नागारा स्टाइल, वेसारा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, विच स्टाइल इट इज, ये सब मैंने बताया है रिवीजन क्लासेस में। ठीक है, देन आपको ये बताना है कि आर्किटेक्ट का नाम क्या है, वो इज द आर्किटेक्ट। देन यू शुड नो कि जो राम लल्ला का आइडल है, हु इज द आर्किटेक्ट और डिजाइनर स्कल्पचर ऑफ दैट। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, इट हैज बीन वेरी मच इन द न्यूज, इट अरेस्टेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड इन जनवरी। सो ये स्टैचुरी बॉडी है कि नहीं है, इज इट स्टैचुरी बॉडी और नॉट, हु इज द चेयरमैन और हु इज द डायरेक्टर जनरल हेड ऑफ दिस एजेंसी। ठीक है, व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, इट कम्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, यस, ठीक है, तो ये दीज आर थिंग्स यू शुड बी नोइंग अबाउट। देन ब्रिक्स के नए मेंबर्स बने थे, तो हाउ मेनी मेंबर्स बने, मैंने ब्रिक्स से पूरी क्लास ली है। ठीक है, सो गो एंड वॉच इट। व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, कब फॉर्म हुआ था, फर्स्ट समिट कब हुआ था। ठीक है, दिस ईयर 2024 में समिट कहां हुआ, करेंटली टोटल हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यू आर सपोज्ड टू स्टडी। सो अभी मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सो दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। देन ये इंपॉर्टेंट था, नगोर्नो काराबाग कॉन्फ्लिक्ट, ये आर्मेनिया अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। So there is a place called as Nagorno-Karabakh, which is a conflicted region, which is a region of conflict between Armenia and Azerbaijan. उस टाइम पर ये न्यूज में था, रिपब्लिक ऑफ अर्त्साख वाज डिसॉल्व्ड एंड ऑल। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको आर्मेनिया, ये इंडिया है, ये अजरबैजान, यहाँ पर आर्मेनिया है। ठीक है, here is Armenia, here is Azerbaijan। तो अजरबैजान के लैंड के टेरिटरी में यहाँ पर somewhere here you will find this Nagorno-Karabakh region। ठीक है, and this is a disputed territory between Armenia and Azerbaijan. And Azerbaijan is also important because Baku में COP29 is happening, है ना। We'll be having a class on of COP29 most likely this Saturday 3 PM, मतलब upcoming Saturday को। ठीक है, so ये आपको पता होना चाहिए। But these are the things you should be knowing about. Then जनवरी में और क्या हुआ था, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन पता होना चाहिए क्या था। फिर लास्ट ईयर था ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, ये पता होना चाहिए। देन ऑपरेशन आयरन शील्ड, ओके, ये सब पता होना चाहिए। देन यू शुड नो आईसीजे एंड आईसीसी दोनों ने कुछ इशू किया था, पेटिशन, एक्चुअली देयर हैव बीन पेटिशंस अगेंस्ट इजराइल एंड ऑल। तो ये पेटिशन किया था यूएन कोर्ट्स, है ना, rules that Israel must take all measures to prevent genocides and also that was in the news। ओके, तो ये पढ़ना है। अब आईसीजे न्यूज में, तो आईसीजे इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, मैंने यूनाइटेड नेशन में पूरी क्लास ली है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पढ़ना है, व्हेन इट इज फॉर्म्ड, रोम स्टैट्यूट के अंदर 2002 में बना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, सिमिलरली आईसीजे के बारे में पढ़ना, वेयर इज द हेडक्वार्टर, व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, इट इज अंडर यूनाइटेड नेशन। सो प्लीज रीड दीस थिंग्स। सो आई एम गिविंग यू द सजेशंस, क्या क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, then in February what happened, February 2024 में यूनिफॉर्म सिविल कोड वाज पास्ड बाय उत्तराखंड असेंबली। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में मेंशन, प्लीज टेल मी, आई एम वेटिंग, व्हिच आर्टिकल टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पांस। अंडर डीपीएसपी। सो उत्तराखंड असेंबली ने पास किया, इससे पहले गोवा है, उसमें टू सम एक्सटेंट यूसीसी है पोर्चुगीज कोड के अंदर, है ना। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्ट्रक डाउन किया गया था, उस जजमेंट का नाम बताना है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जजमेंट एंड व्हिच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट साइटेड व्हाइल स्ट्राइकिंग इट डाउन। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड कौन सा बैंक इशू करता है, व्हिच बैंक इशूज इट, हाँ, आर्टिकल 44 यूसीसी। वेरी गुड अंशिका। ठीक है, सो दिस थिंग यू शुड बी नोइंग इट कि व्हिच बैंक इशूज दिस, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, देन इसका डिनोमिनेशंस क्या क्या होता है, अंडर व्हिच डिनोमिनेशंस यू विल फाइंड दिस। इसरो ने इनसैट 3DS लॉन्च किया, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। यस, एसबीआई इशू करती है, यस तनिष्का, अर्चिता राइट। हाँ, देन मार्च 2024 में सबसे इंपॉर्टेंट था जो चीफ इलेक्शन, आई होप यू आर अवेयर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर बॉडी होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। उसमें से एक ने रिजाइन कर दिया था, अरुण गोयल, और एक रिटायर हो गए थे, वन गॉट रिटायर्ड, वन रिजाइंड। इन दोनों को नए दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स बनाए गए थे, उनका नाम बताना है, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर 324, तो ये पता होना चाहिए। देन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड।
तो ये कौन से एक्ट को अमेंड करता है? तो इट अमेंड्स विच एक्ट? सो सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये पता होना चाहिए। इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, CAA 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। देन सोनम वांगचुक का लद्दाख प्रोटेस्ट, ये काफी ज्यादा न्यूज में था, सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो। अगर आप नहीं देखा है सो प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना उसके बाद क्या हुआ था कि स्वीडन जो है नाटो का 32nd मेंबर बना था। तो नाटो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पास्ट 2 years बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर के बाद नाटो काफी न्यूज में। सो उसको स्टार लगा लेना। और अगर आपने नाटो वाला वीडियो नहीं देखा है सो जस्ट सर्च दिस और यू विल गेट दिस वीडियो अबाउट नाटो। ठीक है, सो गो एंड वॉच इट, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ओके, देन ये इंपॉर्टेंट था, ये पूछ सकते हैं बिकॉज दे आर आस्किंग क्वेश्चंस इन रीसेंट ईयर्स फ्रॉम हियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट वाज पास बाय यूरोपियन यूनियन। हाँ हाँ, नाटो का 75th ईयर भी हुआ था बिकॉज 1949 में बनी थी, तो दिस टाइम वी हैव सीन 75th ईयर आल्सो। यस, यू आर राइट अंशिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट वाज पास बाय यूरोपियन यूनियन। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा प्लीज, रीड समथिंग अबाउट इट बिकॉज दे आर नाउअडेज आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया था कि इमीडिएट सीज फायर हो गाजा में। दैट वाज वेरी मच इन द न्यूज। एक और है, ये मैंने पहले पढ़ाया नहीं था बट यू शुड नो इट। बाल्टीमोर एक जगह है अमेरिका में, वहां क्या हुआ था कि एक शिप जो है ना उसमें उसने धक्का मार दिया था। एक्चुअली इट हिट, दिस वाज वेरी मच इन द न्यूज। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज इन बाल्टीमोर कोलैप्सेस, 6 feared डेड। तो शिप का नाम था दाली, ये याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। और इसमें जो ऑल 22 इंडियन क्रूज थे। तो ये काफी न्यूज में आया था जनवरी फरवरी मार्च के आसपास। पास्को रिवर, दैट वाज वेरी मच इन द न्यूज। बाल्टीमोर इज अ प्लेस इन यूएसए। ठीक है, ब्रिज का नाम था फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज। सो प्लीज रिमेंबर दैट आल्सो बिकॉज द रीजन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 22 इंडियन क्रू मेंबर्स वे देयर। ठीक है, इसलिए हो सकता है पूछ ले। सो दिस यू शुड बी नोइंग इट। ओके, देन बल्गारिया रोमानिया ने पार्शियली शेंगन एरिया ज्वाइन कर लिया था। इट इज शेंगन एरिया इज रिलेटेड विद यूरोपियन यूनियन। मैंने यूरोपियन यूनियन पे ऑलरेडी क्लास लिया है, सो जस्ट सर्च ऑन द यूट्यूब यूरोपियन यूनियन करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस, ऐसा सर्च करना, यू विल गेट द वीडियो। और ये इंपॉर्टेंट है, आई हैव टॉट इन द पेड सेशंस। ऑस्कर अवार्ड, आई हैव ऑलरेडी टेकन द क्लास। मार्च में ऑस्कर अवार्ड्स अनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो ये सर्च करना था यूट्यूब पे, ऑस्कर करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस, यू विल गेट दिस वीडियो एंड यू आर सपोज टू वॉच इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन उसके बाद है, लेट्स मूव ऑन टू अप्रैल। जो भी प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट न्यूज हुई है वो सारा मैं डिस्कस करा दे रहा हूं सो दैट यू शुड नॉट बी मिसिंग। इजराइल ने डमास्कस एक्चुअली सीरिया में, तो ईरानियन एम्बेसी सीरिया में थी, वहां अटैक किया था, किल्ड 16 पीपल एंड ऑल। ओके, फिर ईरान ने रिटेलिएट स्ट्राइक वगैरह किया था, सो दिस वाज इन द न्यूज एंड ऑल। देन मई में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था, पुणे पोर्शा केस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड चीजें आपको हो सकता है शायद लीगल वगैरह में पूछ ले। ठीक है, सो पुणे पोर्शा केस के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, आई वुड से स्पेशली फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। देन घाट कोपार ट्रेजेडी हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ा सा होर्डिंग था, वो कोलैप्स कर गया था एंड ऑल। That was very much in the news. This is very very important. The third one, President of Iran, he died in a helicopter crash. तो ये आपको पता होना चाहिए. This you should be knowing it. उसके बाद न्यू प्रेसिडेंट बने थे कुछ दिन बाद. And who is the new president? और जो न्यू प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी उसमें हमास के चीफ गए थे. The chief of Hamas was there and just after the coronation ceremony he was killed by a drone attack. So who is the new president and who is the Hamas chief killed? Please tell me in the comment section. I have taught. देन साइक्लोन रेमल आया था, ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। देन प्रज्वल रेवन्ना केस, अ वेरी फेमस केस, इनफेमस केस फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, सो दिस रीड इट। देखो साइक्लोन में क्या पढ़ना होता है कि हु गिव दिस नेम और कौन से सी या ओशन में आया था, ये पता होना चाहिए। ठीक है, दीस टू थिंग्स। यस अर्शिका, यू आर राइट, मसूद पेजेशकार इज द न्यू प्रेसिडेंट, वेरी गुड। ठीक है, फिर मई में और क्या क्या हुआ था कि यूएन जनरल असेंबली पासेस रेजोल्यूशन टू ग्रांट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन द राइट टू बी सीटेड अमंग मेंबर स्टेट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ये हुआ था एक चीज। देन चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट सीक किया था इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, हमास लीडर याह्या सिनवार के अगेंस्ट। याह्या सिनवार वाज लेटर किल्ड इन आई थिंक अ ड्रोन अटैक। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, देन पापा न्यू गिनी में वी हैव डिस्कस्ड इट, लैंडस्लाइड्स आया था। पापा न्यू गिनी इज एक्चुअली अ प्लेस साउथ ईस्ट फ्रॉम इंडिया, यू विल फाइंड, है ना, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नॉर्थ में आपको मिलेगा। मोर देन 2000 पीपल डाइड इन लैंडस्लाइड्स एंड ऑल।
So these are the things you should be knowing. Then ये important है, ये इसलिए important है because recently Donald Trump has won the US presidential election and he was found guilty in 34 counts in his hush money trial case. ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था, इसको मैंने पेड सेशंस में पढ़ाया भी था, बट यहाँ पे स्पेस नहीं पढ़ाने का, बट आप पढ़ लेना इसको, प्लीज गो एंड रीड इट. दिस वाज बिकेम वेरी प्रोमिनेंट एंड ऑल, डोनाल्ड ट्रम्प केस एंड ऑल. सो ही वाज फाउंड गिल्टी इन 34 काउंट्स. अब इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट. नाउ ही विल अगेन फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स ही विल अगेन बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. सो गो एंड रीड अबाउट हिम, हिज पॉलिटिकल पार्टीज, रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए. सो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स you should be knowing. Then जून 2024 में सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन का रिजल्ट आया था 4 जून को. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है. आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, इसको सर्च करना यूट्यूब पे, यू विल गेट दिस वीडियो. नाउ इलेक्शन रिजल्ट से रिलेटेड ये सब पूछ सकते हैं कि कौन से पार्टी को कितनी सीट्स आई, ये तो पूछ ही लेंगे. फिर ये पूछेंगे कि अकॉर्डिंग टू एडीआर कितने % लोकसभा एमपीज पर क्रिमिनल चार्जेस है, हाउ मेनी वुमेन आर देयर, हु इज द लोकसभा स्पीकर, डेप्टी स्पीकर है तो है कि नहीं है. So these are the things that can be asked. ठीक है, तो ये सब बिल्कुल पूछा जा सकता है. You should be knowing it. Then this is important. Claudia Sheinbaum, first elected president, female president बनी है मेक्सिको की. Of course this you should be knowing it. स्टार मार्क कर लेना. और एक और है मलावी, एक जगह है अफ्रीका में, ये भी मैंने रिवीजन में मिस कर दिया था. So I have decided to discuss here. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मलावी, वो प्लेन एक्सीडेंट हुआ था वहां, उसमें वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी. साउलोस चिलीमा नाम है. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर इट बिकॉज मे बी दे कैन आस्क कि देयर वाज अ प्लेन क्रैश. मलावी इज अ प्लेस इन अफ्रीका, इज अ कंट्री इन अफ्रीका. ठीक है, तो उनके वाइस प्रेसिडेंट का प्लेन क्रैश में डेथ हो गया था. देन विकीलीक फाउंडर्स जूलियन असांज को जो है ना, ही वाज फ्रीड फ्रॉम द प्रिजन इन यूके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ही पढ़ लीजिएगा प्लीज रीड इट. मैंने आपको टच करा दिया टॉपिक because currently I cannot teach each and every topic in detail. So whatever important ones I am highlighting here, please read that as well. अगर आपने मिस कर गया है या अगर कहीं रिवीजन क्लासेस में, सो प्लीज रीड इट. तो नॉट है ना. सो जूलियन असांज केस इज इंपॉर्टेंट, विकीलीक्स फाउंडर, तो थोड़ा पढ़िएगा. ठीक है, सो अभी रिसेंटली मैं अक्टूबर में देख रहा था, ये द हिंदू के न्यूज पे इनका डिस्कशन था. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट जुलाई 2024. सो 3 क्रिमिनल कोड्स केम इनटू इफेक्ट 1 जुलाई को, है ना, 1 जुलाई 2024 को, एंड 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी आया था, इंप्लीमेंट हुआ था. That is why 1st July is also celebrated as GST Day. ठीक है, तो 3 criminal codes we have already discussed it. I'm not repeating it. You are supposed to read about it. Then ये important हुआ था, ये भी मेरे से मिस कर गया था रिवीजन क्लासेस में, so I have discussed there. Wazir X, an Indian cryptocurrency exchange by Binance, announces security breach of $234 million. ये काफी फेमस हुआ था, so you should be knowing about it. इंडिया क्रिप्टो थेफ्ट डेटा वाज वॉश, मतलब इंडिया के जो क्रिप्टो का डेटा था वो सब फ्रॉड के जरिए चोरी कर लिया गया था, समथिंग लाइक दैट. सो प्लीज रीड इट बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन मैंने देखा है कि वजीर एक्स के फाउंडर का नाम पूछ देंगे, निश्चल शेट्टी. अगर आप देखोगे लास्ट ईयर का क्वेश्चन उठा के, लास्ट ईयर का, सो दे हैव आस्क्ड सच क्वेश्चंस. एकदम लेटेस्ट इवेंट हुआ और ये सब क्रिप्टो वगैरह से या साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था, एंड दे आस्क्ड इट. सो डू नॉट से कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन कैसे आ गया, बिकॉज आता है वो. ठीक है, सो डू नॉट बिलीव कि there will not be any question from science. There will be a question and I am sure that this time also we will find questions. Cryptocurrency वगैरह बिल्कुल पूछेंगे. Okay, then चारादेव मैदान, we have discussed it. UNESCO World Heritage Site बनाया गया. This is now the 43rd UNESCO World Heritage Site. ये जो है अहोम किंगडम होता था असम में, है ना, so उन लोगों के द्वारा था, है ना, बनाया गया था. And also please go and read about that. Then we have Wayanad's landslides. Wayanad is a place in Kerala where actually landslides happen. Mr. Rahul Gandhi was the MP. Now the elections is happening again by poll elections, है ना. So these things you should be knowing. Then Paris Olympics हुआ था, उस पे मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बनाया है. So please go and watch it. आपको जस्ट ये सर्च करना है, just search this and you will get these 3 videos. ये तीनों देख लीजिएगा. Because there is a chances of questions from here, so star mark these two. Okay. Then the next one is UK में election हुआ था and Indian origin Prime Minister Rishi Sunak had to resign because he lost the election. His party is Conservative Party and from Labour Party Keir Starmer became the Prime Minister after the elections. So ये पता होना चाहिए. ठीक है. Then we have discussed that after the death of Iran's president, former President Ibrahim Raisi's death, after that Masoud Pezeshkian was elected as the new president of Iran.
And when actually when Masood Pezeshkian was elected as the president of Iran, Hamas chief was just after this coronation ceremony. Hamas chief was killed in a drone attack and all. So this thing you should be knowing it. Then July में ये आया था कि President Donald Trump, there was an assassination attempt at him in Pennsylvania and USA, and he survived and all. फिर ये this is very very important, global outage, जो CrowdStrike outage हुआ था, global IT outage, impact variety of business organization, CrowdStrike outage. तो ये बहुत prominent हुआ था, बहुत famous हुआ था. This also you should be knowing about it. Go and read about it in detail. इसको पढ़िएगा because this is very very important. Then let's talk about August 2024. So August में एक very unfortunate incident हुआ था, RJ Kar Medical College incident in Kolkata. Then हेमा कमेटी रिपोर्ट उसी टाइम पर आई थी, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है. So हेमा कमेटी रिपोर्ट पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, so go and watch it. Then you should know the keywords associated with these laws. जैसे पॉश एक्ट क्या होता है, विशाखा केस, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए. Then you should be these are the things we have discussed. Then Me Too movement के बारे में we have already discussed. Go and watch that. Then what happened was August में the prime minister, like what happened was Sheikh Hasina, the prime minister of Bangladesh, resigned. तो इस पर मैंने वीडियो बनाया था, so go and watch it. And new prime minister Mohammad Yunus actually took the charge as the chief advisor. हाँ, अपराजिता बिल भी आई. Yes तनिष्का, very good. यहाँ पर अपराजिता बिल करके आया था उसके बाद in Bengal. ठीक है. So this is what you should be knowing it. And after WHO, yes, this is very very important. Mpox को public health emergency of international concern declare किया गया. ये शायद I think 7वां है, if I'm not wrong, please check it. 6th या 7th है disease है जिसको public health emergency of international concern declare किया गया. So previous ones का नाम पता कीजिए. Mpox disease, does it happen through virus, bacteria, किससे होता है ये पता होना चाहिए. Originated from where, अफ्रीका की कौन सी कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है, in which year it was originated. फिर और क्या पढ़ना है, फिर और ये पढ़ना है कि mpox में is there any vaccine or not, or is there any medicine for that or not. So these are the things we're talking about. WHO, when it was established, so 7th April 1948. That is why we celebrate 7th April as World Health Day. ठीक है. हाँ, Congo, yes तनिष्का. तो these are the things आपको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है. मैं आपको तरीका बता रहा हूँ. Then Indonesia 79th independence, ये important है because Indonesia is now having a new capital, Nusantara. इससे पहले capital हुआ करता था Jakarta, and they have recently changed the capital to Nusantara, and they have celebrated the independence and all there. ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए. Then September month में what are the prominent things that happened. तो फर्स्ट तो ये वाला चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली लोगों ने स्किप कर दिया था. 2024 त्रिपुरा पीस अकॉर्ड साइंड बिटवीन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल इंडिया टाइगर फोर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा. इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है. So read it. And Manipur conflict is very 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 important. Yes Anshika, I am little bit discussing Manipur crisis. ठीक है. तो सबसे पहले एक मणिपुर हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, ठीक है, जो स्टार्ट हुआ, जो मतलब जिससे एक्चुअली क्या है कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू बी गिवन टू मीती कम्युनिटी. दैट मणिपुर हाईकोर्ट ऑर्डर केम लास्ट ईयर. उसके बाद काफी हंगामा हो गया एंड ऑल, and the Supreme Court also was not happy because the Supreme Court had previously said in a 5-judge bench order that only president, of course on the advice of central government, under Article 342 can declare a tribe to be a scheduled tribe. ठीक है. तो 342 के अंदर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, जुडिशियरी के पास पावर नहीं है. पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 5-judge bench ने कहा था. सो द मणिपुर हाई कोर्ट एक्चुअली वेंट अगेंस्ट इट एंड दैट इज व्हाई द सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट हैप्पी. क्यों सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट हैप्पी? बिकॉज जो हाई कोर्ट्स होते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं. वेयर इट इज रिटन, ये कहां लिखा है? लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट shall be binding on all courts within the territory of India. This is a question asked, previous year question, MSCT वगैरह कहीं पूछा था ये. Law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. Where it is written, in which article of the Constitution you will find this? I'm waiting for the response. So the Supreme Court was not happy because the previous 5-judge bench order had categorically said कि only that the president can declare.
इसमें हुआ ये था, वही जो लास्ट ईयर जो हंगामा हुआ था कि मणिपुर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट को टू सेंड अ रिकमेंडेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डिमांड ऑफ एसटी। लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट 141। यस yes Anshika, very good। तो ये क्वेश्चन आती है, yes Anishka, very good। so this question is a previous year question of some exam, law entrance exam, last year। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो ये वही अफर्मेटिव एक्शन में रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन इसी को सबको कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल होता है और रिजर्वेशन एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स, और गिविंग अ शेड्यूल ट्राइब स्टेटस और सम स्टेटस एंड ऑल। खैर, तो ये सब अफेक्टेड रीजन था, दीज वर द अफेक्टेड प्लेसेस एंड ऑल। नाउ कुछ चीज आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड, वो ये है कि देखो, ये है मणिपुर और ये है म्यांमार। सो इट इज सेड कि म्यांमार में 1 फरवरी 2021 के बाद मिलिट्री कू आया, उससे भी कुछ असर पड़ा था, बिकॉज इनिशियली द गवर्नमेंट हैड अलाउड फॉर फ्री मूवमेंट रेजीम। तो फ्री मूवमेंट रेजीम में क्या होता था कि कुछ 18 किलोमीटर के आसपास के बॉर्डर में ना वीजा फ्री मूवमेंट था। उस होने ये लगा कि व्हेन द मिलिट्री कू हैपेंड, अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कमिंग एंड ऑल फ्रॉम म्यांमार। तो ये भी शायद एक रीजन था। फिर बाद में फ्री मूवमेंट रेजीम वाज स्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल, ओके, because of course it was leading to illegal movement too much and all, it was causing problem। एक दो चीज और आपको पता होना चाहिए, वो ये है ना कि देखो इसमें है कि मीतीज, जैसे ये ऐसे होता है ना पहाड़ी, सो वैलीज में जो होते हैं ना वो मीतीज रहते हैं, एंड दे आर प्राइमरली हिंदूज। और पहाड़ों पर जो है नागाज एंड कुकीज रहते हैं। ठीक है, मेन जो कुकीज से जो इशू है दैट दे आर मोस्टली क्रिश्चियंस। So that is what this you should be knowing about। Okay, तो इतना, थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको हल्का सा एक रफ आइडिया दे दिया। ठीक है, तो गो एंड रीड अबाउट इट इन डिटेल। यस, और अभी इसलिए भी न्यूज में था बिकॉज ऑफ दिस रीजन। यस तनिष्का, सो आफ्सपा इन्वोक कर दिया गया है, एंड बिकॉज ऑफ विच एक्चुअली इट हैज बीन वेरी मच इन द न्यूज एंड ऑल। तो आफ्सपा से रिलेटेड कुछ कमिटीज भी है दैट यू शुड बी नोइंग इट। एक है बीपी जीवन रेड्डी कमेटी, और एक संतोष हेगड़े कमेटी करके, संतोष हेगड़े। These two had recommended that AFSPA should be repealed, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, these things you should be knowing। ओके, और AFSPA जो है वो डिक्लेयर किया था डिस्टर्ब्ड एरिया, तो उसके बाद AFSPA इन्वोक किया जाता है। सो 7 सिस्टर स्टेट्स वगैरह में है, कश्मीर में वी हैव सीन एंड ऑल। देन ओरिजिनली कहां से लाया गया, तो 1942 जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ना, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने AFSPA टाइप समथिंग लगाया गया था। तो ओरिजिनल आइडिया वहीं से लिया गया, एंड दे लेटर ऑन आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज इन्वोक्ड इन the states and all different northeastern states। so yeah, you should have a basic idea about it। then ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते, एक्स जो है ना ट्विटर का पुराना नाम है। सो रिसेंटली द ब्राजील गवर्नमेंट हैड बैंड ट्विटर, और सुप्रीम कोर्ट भी इसको अपहोल्ड किया था इस डिसीजन को। ठीक है, सो गो एंड फाइंड आउट द रीजंस फॉर दैट एंड ऑल। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। पूछा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बैंड ट्विटर और /X, क्योंकि एलॉन मस्क है ना, नो एलॉन मस्क हैज बॉट एट $44 बिलियन पे खरीदा था, है ना, few years back। And the person who tried to attempt to murder the assassinate Donald Trump, Ryan Wesley Routh, was arrested। तो ये नाम याद रख लीजिएगा, just remember it। then यूएस में एक जगह है फ्लोरिडा, यहाँ दो फेमस साइक्लोन्स आए थे, ये हरिकेन कह लो, हरिकेन हेलिन एंड हरिकेन मिल्टन 2024 में। so these two names you should remember। ठीक है, here is India, this is US, यहाँ पे आपको फ्लोरिडा मिलेगा। ठीक है, The UK became the first G7 country to phase out coal power for electric generation after 142 years। ये याद रखिएगा, ये कंट्री पूछ सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट G7 कंट्री जिसने कंप्लीट फेज आउट ऑफ कोल की बात कही है ना, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो इट। देन अक्टूबर में क्या क्या हुआ, बाबा सिद्दीकी's murder was there, so read about something about Lawrence Bishnoi, बाबा सिद्दीकी, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, because maybe they can give one passage on it। Then of course what happened was Indian ambassador to Canada, Mr. Sanjay Kumar Verma was actually recalled back after some issues with Canada। I hope you are aware। तो Canada से related जितने भी issues हैं, please do read it। ठीक है, India Canada relations करके सर्च करना, you will get articles, especially Wikipedia content and all। तो पढ़िएगा थोड़ा सा, because हरदीप सिंह निज्जर एंड पन्नू केस ये सब काफी न्यूज में था। so that is what you should know। ठीक है, so इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ओके, देन साइक्लोन दाना केम इन ओडिशा। तो किसने नाम रखा था, इन विच एरिया बे ऑफ बंगाल में आया था।
सो ये सब पता होना चाहिए. देन दिस इज इंपॉर्टेंट. अभी रिसेंटली हुआ था, वडोदरा इज अ प्लेस इन गुजरात वेयर एक्चुअली जॉइंट वेंचर बिटवीन एयरबस एंड टाटा एडवांस सिस्टम के लिए एक प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज एस्टैब्लिश्ड. दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी रीसेंट. ठीक है. एंड फिर आप देख सकते हो ये वाला इवेंट है ना. एक्चुअली द स्पेन प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो देयर. उनके साथ मिल करके ये इवेंट को एक्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया. ठीक है. और इनॉग्रेट किया गया टाटा एयरबस के साथ मिलकर. ठीक है. सो दिस यू शुड बी नोइंग इट. देन एक और इवेंट हुआ था. 10 elephants die of suspected fungus poisoning in millet contaminated millet की वजह से बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में. तो लोगों ने कंटामिनेटेड मिलेट खा लिए थे जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में 10 एलिफेंट एक्चुअली 10 एलिफेंट की डेथ हो गई. सो दैट वाज आल्सो इन द न्यूज़ एंड ऑल. देन द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान. ठीक है. तो नए प्राइम मिनिस्टर बने थे जापान के शिगिरो इशिबा जस्ट आफ्टर द G7 समिट. तो इनका नाम पता होना चाहिए और इससे आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर का भी नाम पता होना चाहिए. ठीक है. ये पता होना चाहिए. देन ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट यू शुड बी नोइंग इट. देन ये पता होना चाहिए मे बी बिकॉज nowadays they are asking questions from science and technology also. इसको पढ़ लीजिएगा. एंड यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च टू इन्वेस्टिगेट यूरोपा एंड ICSP. तो जुपिटर का एक मून है यूरोपा, उसको स्टडी करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन वाज लॉन्च. ठीक है. इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज रीड इट. एंड देन अक्टूबर में नोबेल प्राइज अनाउंस होता है. तो मैंने आपको बताया था एटलीस्ट ये और ये वीडियो देख लीजिएगा. Please go and watch at least these two videos because these two videos will be quite helpful. ठीक है. So इसका स्टार मार्क लगा लीजिए. Okay. Then November में what happened? So विस्तारा है ना, एयर इंडिया विस्तारा का मर्जर हो गया. So they can ask about एयर इंडिया. मैंने डिटेल बताया था कि 1932 में एस्टैब्लिश हुआ ओरिजिनली JRD टाटा के द्वारा. ठीक है. Then later on 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया bought it और what we call it as nationalization. फिर 2-3 साल पहले 2021-22 में at rupees 18,000 crore again Tata actually bought it back. तो ये सब न्यूज में था. This you should be knowing it. ठीक है. फिर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप और JD वॉन्स इलेक्शन जीत गए. JD वॉन्स की जो वाइफ है उषा वॉन्स है ना, यूसी वॉन्स, शी इज एक्चुअली फ्रॉम इंडियन ओरिजिन है ना. ठीक है. तो होता क्या, फर्स्ट लेडी सेकंड लेडी वर्ड बोलते हैं. जैसे डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ विल बी द फर्स्ट लेडी. फर्स्ट लेडी मींस यू प्रेसिडेंट की वाइफ. JD में सेकंड लेडी हो जाएंगी. सेकंड लेडी वुड बी एन इंडियन ओरिजिन है ना. सेकंड लेडी मींस वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ. ठीक है. सो दैट इज हाउ दीस टर्म्स दे यूज देयर. ठीक है. फर्स्ट लेडी सेकंड लेडी टर्म यूज करते हैं. देन जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स. ओके. ही वाज डिसमिस्ड इनका कोalition गवर्नमेंट गिर गया. सो देयर विल बी वेरी सून इलेक्शन इन जर्मनी. यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. Then COP29 is actually happening in Baku, Azerbaijan. So we'll be having very soon a session on this. इस पर सेशन होगा एक. ठीक है. Then श्रीलंका में नई गवर्नमेंट है. Who is the new prime minister, president? ये आपको पता होना चाहिए. This you should be knowing it. Okay. This is important and all. Okay. एक दो चीज और है जो भी recent जो grouping summits हुआ है वो है G7, G20 तो अभी होने जा रहा है. So we have not made a video, but G7, SCO, BRICS, COP16, CBD. These we have made video. इसका वीडियो आएगा very soon. ठीक है. अब करना क्या है, जैसे G7 या G20 सर्च करना तो यूट्यूब पे ऐसे जाके सर्च करना है G7 करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस. यू विल गेट दिस वीडियो. ये इटली में हुआ था. सिमिलरली अगर आपको सर्च करना है SEO के बारे में तो SEO और ये सर्च करना है. वॉच दिस वीडियो. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट SEO. सिमिलरली ब्रिक्स के बारे में आपको सर्च करना है. सो यहाँ पर लिखे हो ब्रिक्स करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस. वी हैव मेड अ वीडियो बिकॉज रिसेंटली रशिया में समिट हुई थी काजान में. ठीक है. सो दिस आल्सो वी हैव मेड इट. सो दीस आर द वीक्स. फिर आपको सर्च करना सिमिलरली यहाँ पे सर्च करना COP16 CBD ऐसे लिखना है. फिर लिखना है करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस. यू विल गेट दिस वीडियो. So go and watch those videos. These are very important. And in upcoming class, I'll be discussing very soon about COP29 Baku, Azerbaijan, because that is also very very important. ठीक है. So this is all about today's class. मैंने fast आपका time save करके, not to waste your time, I have discussed the important things which have been in the news. Plus आपको revision तो करना ही करना है. वो वाली revision series skip नहीं करना है. This one जो मैंने आपको बताया ना कि playlist में. ठीक है. सो यू हैव टू गो टू दिस प्लेलिस्ट है ना, और इसमें ये वाले वीडियोस जितने हैं ये सारे देखना है. और आज टुडे 8 PM पे विल बी हैविंग अ स्टैटिक जीके सेशन. ये भी देखना. सो डू कम इट. ओके. सो वी आर एंडिंग दिस सेशन हियर.
The important ones I have tried to discuss, and rest is actually in this revision series. So I hope that you must have watched it. So this is all about today's class. अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है इतना देखने का, सो व्हाट आई सजेस्ट इज 1.5x या 2x स्पीड पर देख लो, ठीक है, and try to cover things and all. So this is all about today's class. Please press the like button, subscribe to our channel. Now I'll be meeting you at 8 p.m. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.